Hello everyone, how are you all? I think you are doing good. So today we will study social science chapter, class 4th, and I think this is applicable in all the schools. It may be the chapters may be shuffled. They may be the chapter which is first here, it may be third in another books. So chapters are world we live in. Let me introduce you first about the index of social science of this book. This book is of class 4th, and social studies chapters are given here: world we live in, movements of earth, beginning of settled life, physical features of India, climate of India, and industries. So today we will study the second chapter first, that is movements of earth. Okay, let's start with this chapter. Yes, students, I assure you, if you will see or listen this page, this chapter carefully, then 100% you will get a good score. First you listen this and then you just again read it on your own. Then automatically you will mastery over all the concepts. So let me take you the SST chapter now, where it has gone. It was at the back of the chapter. Okay, I got it now. 1 second. So we will study today movements of earth. Here what is given, learning objectives are given here. In this chapter they will describe rotation, revolution of earth, differentiate between rotation and revolution of earth. They will demonstrate how earth's movement causes day and night as well as change of seasons also. And fourth one will be to discuss the reasons for the change of seasons. Okay, this all we're going to read now. The first chapter, first topic is earth on the move. So I'm reading it by line to line. 1 second. Now it is okay. When you travel by train, you seem to feel that the trees, fields, buildings outside the train move. Means जब हम travel करते हैं by car, by any vehicle, तो we see that trees are moving on the road, and they seem to move, but it is not so. They seem to move in opposite direction. अगर हम सीधे जा रहे हैं तो we will see that suppose our car is going in this direction, then all the trees we will see they are moving in the opposite direction. ठीक है, they seem to move. Seem मतलब means दिखाई दे रहे हैं, visible. They seem to move in the opposite direction in which train is moving. Okay. When the train stops, these two seem to stop moving. ट्रेन स्टॉप होती है तो इट मीन्स वो भी सब कुछ रुका हुआ मुझे नज़र आ रहा है. हाउएवर इट इज़ अ ट्रेन दैट एक्चुअली मूव्स. ठीक है, जब ट्रेन मूव करती है तो भी हमें दिख रहा है कि नहीं ट्रेन मूव कर रही है, साथ में ट्रीज भी मूव कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता. द ट्रेन मूव्स, व्हेन द ट्रेन मूव्स, ट्रेन ओनली मूव्स बट द ट्रीज आर स्टेशनरी देयर, नॉट द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द ट्रेन. ओके, मीन्स जब हम चल रहे हैं तो हर चीज़ स्टेशनरी है, ओनली वी आर मूविंग. And we are moving whether we are moving in car or train, whatever the vehicle is. Similarly, we say that the sun rises in the east and sets in the west. अब हमें पता है कि सनराइज होता है ईस्ट में और वेस्ट और सेट्स होता है वेस्ट में. हाउएवर सन डज नॉट राइज और सेट, लेकिन ऐसा नहीं होता. सन डजंट राइज और सेट. अभी तक आई थिंक दैट जो हमारे एल्डर्स हैं दे डोंट नो अबाउट दिस. Also, सूरज उग रहा है और सूरज छिप रहा है. Today they also say the same thing. It just appears to rise in the east and sets in the west because of the movements of the earth from west to east. This all is happening because of our earth is moving. हमारी अर्थ कहाँ से कहाँ मूव कर रही है और west to east. Like the sun, other heavenly bodies such as stars also appears to rise and set. जैसे कि हमारा सन है, ऐसे ही और भी हेवनली बॉडीज़ हमारे यूनिवर्स में स्टार्स हैं, वो भी हमें वो भी दिखाई दे रहे हैं. दे आर ऑल्सो अपियरिंग टू अस टू राइज एंड सेट. दे कैन बी सीन एट डिफरेंट पोजिशंस इन द स्काई आफ्टर एवरी फ्यू डेज.
और हमें दिखता है कि दीज थिंग्स वर हेयर लाइक स्टार्स वर हेयर आफ्टर सम डेज दे वी आर फाइंडिंग देम देयर बट दिस इज़ वाई मैनी पीपल इन अर्लियर टाइम्स बिलीव दैट अर्थ वॉज स्टेशनरी। सभी का मतलब जितने भी अर्लियर पीपल हैं, पहले के लोग हैं, दे वर बिलीविंग दैट, उनका मानना था कि अर्थ वॉज स्टेशनरी, अर्थ एक ही प्लेस पे है, हेवनली बॉडीज मूव्ड अराउंड इट, ओनली द हेवनली बॉडीज मूव कर रही हैं यहाँ पे। बट दिस वॉज अ मिथ। अबाउट 2300 years ago, means पहले, before, a Greek astronomer Aristarchus of Samos found out that Earth rotates on its axis and goes around the sun. इन्होंने वॉज देयर, ही वॉज अ ग्रीक एस्ट्रोनॉमर, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। ये एक्सिस है अर्थ का, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन कि अर्थ इसके अराउंड अपने आप में घूमती है और वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। ओके और वो सन के अराउंड मूव करती है, ऐसे घूम लाइक अर्थ ऐसे 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 रिवॉल्व करती रोटेट करती वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, अब आगे देखिए, जो रोटेट और रिवॉल्व है ये मैं आपको आगे क्लियर करूँगी। द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट आल्सो कैलकुलेटेड द करेक्ट टाइम, उन्होंने करेक्ट टाइम निकाला कि कितनी देर में अर्थ टेक्स टू मूव ऑन इट्स एक्सिस, इन हाउ मच टाइम द अर्थ टेक्स टू मूव ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ कितने टाइम में अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, एंड टू गो वंस अराउंड द सन, और इन हाउ मच टाइम इट गो वंस अराउंड मीन्स इट टेक्स वन राउंड अराउंड द sun. So the Aryabhatta told this, and the third person was Nicolaus Copernicus, a Polish astronomer who first said that Earth spins on its own axis. Earth अपने एक्सिस पे स्पिन कर रही है and moves around the sun, और सन के अराउंड मूव कर रही है। Okay, today with the help of modern techniques, it has been proved that statements of these astronomers were true. अब आज के जो हमारे पास इतनी सारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं कि हमने प्रूव कर लिया है कि ये सारी बातें, सभी एस्ट्रोनॉमर्स की जो बातें हैं, दे ऑल आर ट्रू। दीज आर द टू मूवमेंट्स ऑफ अर्थ दैट हैपन एट द सेम टाइम। और जो दोनों मूवमेंट है अर्थ की, एक तो खुद की रोटेशन, खुद के ही अराउंड घूमना, और एक सेकेंड है कि सन के अराउंड मूव करना, तो दोनों मूवमेंट्स जो हैं अर्थ की दैट हैपन और सेम टाइम पे हैपन होती हैं, they occur at same time, and the first one is a movement on its axis and second is movement around the sun. ये तो एक्सिस के अराउंड ऐसे घूमती है। सपोज इट्स एन अर्थ एंड इट विल मूव लाइक दिस ऐसे मूव करती और डिस्प्लेस हो जाती है वहाँ से, और इट रीचेस टू द नेक्स्ट पोजिशन। ओके, to understand these movements, let us read about the axis in detail. So we will study earth axis in this topic. Like all spinning objects, आपको पता है spinning objects means जो घूमते हैं objects. The earth also spin on its own axis. अर्थ भी अपने ही एक्सिस पे मूव करती है। Earth's axis is an imaginary line passing through its center. अर्थ एक्सिस, what is earth axis? वो एक imaginary line है जो कि अर्थ के सेंटर से पास हो जा रही है। It is crossing the center. द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द एक्सिस, और जो टू एंड पॉइंट्स एक्सिस के वो हैं हमने पोल्स कंसिडर किए हैं, माने हैं। दीज आर द टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, एक्सिस ऑफ अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। जो एक्सिस है ये हमें इमेजिनरी लाइन हमने मानी है अर्थ में, ये हमने सपोज करके चले हैं इट इज़ टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री के एंगल से, और टिल्ट हो रखी है, मैंने टेढ़ी हो रखी है, बैंड हो रखी है। द अर्थ स्पिन्स काउंटर क्लॉकवाइज, अर्थ स्पिन्स काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। काउंटर मतलब होता है उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। जो अर्थ होती है वो एक तो ये तो होता है क्लॉकवाइज, और अगर इसी को मैं उल्टा बोलूँ तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, इट इज़ मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, counter means anti ulta. Come to the next topic. What is here? Rotation of earth. The motion of the earth on its axis once in 24 hours is called rotation. जो अर्थ का मोशन है, अर्थ मूव कर रही है अपने एक्सिस पे एक बार। ठीक है, 24 आवर्स में अर्थ अपने आप ही तो घूम रही है, इट इज़ मूविंग लाइक ऑन इट्स एक्सिस, खुद में जो घूम रही है। तो वो वंस इन अ डे, वंस इन अ 24 आवर्स, उसको रोटेशन बोलते हैं एक मोमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट, एज अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ अपना पूरा चक्कर काटने में अपने आप का टू टेक इट्स ऑन रोटेशन, वो 24 आवर्स लेती है, वन डे बोलते हैं उसको। इट इज़ नोन एज डेली रोटेशन ऑफ अर्थ, और ये डेली होता है। नेक्स्ट है
इफेक्ट्स ऑफ अर्थ रोटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट मीन्स अर्थ जो रोटेट हो रही है उसके क्या क्या इफेक्ट है, उसके क्या क्या असर हो रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग हेयर बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन। जस्ट लाइक अ टॉय टॉप स्पिन्स ऑन इट्स पॉइंटेड बॉटम, जैसे कि लट्टू होता है टॉप, यू ऑल नो वेरी वेल, टॉय टॉप स्पिन्स मतलब घूमना, ऑन इट्स पॉइंटेड टॉप लाइक इट्स अ टॉय टॉप एंड इट्स हम ऐसे चलाते थे लाइक यू आर रिमेम्बरिंग दैट आप चाइल्डहुड में ऐसे घुमाए होंगे, वी कॉल देम इन लट्टू इन आवर लैंग्वेज, ओके, इन हरियाणा। नाउ द टॉय टॉप स्पिन्स ऑन इट्स पॉइंटेड बॉटम, पे स्पिन करता है, वो मूव करता है, और आज के टाइम में हम उनको बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड समथिंग एल्स, एंड वी आल्सो ब्रॉट दैट कम्स विथ थ्रेड के साथ आता है, और हम उसको ऐसे से राउंड ऑफ करके उसके ऊपर, और फिर हम इसको एकदम से रिलीज़ करते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए स्पिन करता है, ठीक है। द सन इज़ द नाउ एज वट यू आर स्टडिंग लाइक अ टॉय टॉप स्पिन नॉट्स पॉइंटेड बॉटम, कोई टॉय टॉप होता है, लट्टू होता है, वो अपने पॉइंटेड अपनी बॉटम के पॉइंट पे ही स्पिन करता है, नीचे से बिल्कुल शार्प होता है ऐसे, और वो ऐसे ऐसे मूव करेगा, लाइक मैं इसको मूव करा सकती हूँ बट इट विल फॉल डाउन लाइक दिस। लेट मी ट्राई इट अगेन। ये टॉय टॉप है सपोज, बट ये बहुत पतला है, वो मोटा होता है थोड़ा, और उसकी शेप होती है आपको पता होगा, ऐसे ऐसे घूम करता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए स्पिन करता है। तो अर्थ भी ऐसे स्पिन करती है अपने एक्सिस पे। द स्पिनिंग ऑफ अर्थ कॉल्ड रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, जो अर्थ स्पिन कर रही है अपने आप में उसको रोटेशन बोलते हैं, और उसकी वजह से ही बिकॉज ऑफ दैट डे एंड नाइट अकरिंग, डे नाइट बन रहे हैं। द सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ, आपको पता है सन से ही रोशनी आ रही है, अदरवाइज कहीं से नहीं आ रही। सन इज़ द ओनली लाइट ऑफ सोर्स। द पार्ट ऑफ अर्थ फेसिंग द सन गेट्स लाइट एंड हैज़ अ डे। अगर देखो सन की से लाइट आ रही है, और जिस पार्ट पे अर्थ के पार्ट पे द सनलाइट फॉल हो रही है, इट इज़ लिंगरिंग ऑन द पार्ट ऑफ द अर्थ, सो दैट एट दैट प्लेस देयर विल बी डे, उसी टाइम डे हो जाएगा, और जिस पोर्शन पे लाइट फॉल नहीं हो रही देयर दैट पोर्शन विल हैव नाइट देयर, ओके, वहाँ पे नाइट होगा। ना अर्थ रोटेट्स डार्कर साइड स्लोली मूव्स टुवर्ड्स द सन, जैसे ही फिर जैसे डार्कर साइड मूव करते करते डार्कर साइड आगे आएगी तो वहाँ पे डे हो जाएगा। इट एक्सपीरियंसिस मतलब कि उस पर हो रहा है, नहीं उस पर डे हो जाएगा, इट विल एक्सपीरियंस डे। ऑल पार्ट्स ऑफ अर्थ अल्टरनेटिवली गेट्स डे एंड नाइट बिकॉज ऑफ द कॉन्टीन्यूस रोटेशन। अर्थ के सभी पार्ट्स में सभी कंट्रीज़ में डे एंड नाइट अक्कर होते हैं, क्योंकि वो उसकी कंटिन्यूस रोटेट हो रही है अपने आप में, वो बिकॉज ऑफ दैट सभी कंट्रीज़ में अपने अपने अलग अलग टाइम पे डे और नाइट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला एक एक्टिविटी करी खुद से, say that in classroom assemble all the children, assemble means gather, choose one student to hold the torch, एक स्टूडेंट टॉर्च को होल्ड करेगा एंड दे विल रिप्रेजेंट द सन, वो सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज कि मैंने टॉर्च को पकड़ा हुआ है और मतलब यहाँ से लाइट आ रही है तो मैं सन हूँ, आई एम सन, ओके, एंड शुड स्टैंड स्टिल पॉइंटिंग द लाइट फॉरवर्ड, और ऐसे स्टैंड हो जाओ कि लाइट सामने जा रही है। अनदर स्टूडेंट विल रिप्रेजेंट अर्थ, अदर दूसरा स्टूडेंट अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा कि मान लो यहाँ पे टॉर्च, ये टॉर्च है और इसके सामने ही अर्थ है, ये टॉर्च हो गई, यहाँ पे टॉर्च रख ली हमने, और इसके फ्रंट में हमारे पास दूसरा स्टूडेंट है वो अर्थ का काम कर रहा है, ठीक है। अनदर स्टूडेंट विल रिप्रेजेंट अर्थ, अ स्टिकर विल पुट ऑन देयर फॉरहेड, अब अर्थ पे स्टिकर लगा दो टू इंडिकेट बताने के लिए कि ये स्पेसिफिक लोकेशन ऑन अर्थ, कि ये स्पेसिफिक लोकेशन, मान लो मैं स्टिकर लगा दिया, लोकेशन है कोई सच इंडिया, मान लो स्टिकर हमने इंडिया मान लिया। द स्टूडेंट रिप्रेजेंटिंग द अर्थ, जो स्टूडेंट अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो फ्रंट में स्टैंड हो गया उस फ्लैश लाइट के, एंड फेसिंग डायरेक्टली, और सामने से लाइट आ रही है सपोज करो, ठीक है। द साइड ऑफ देयर फेस विद द स्टिकर इन इट्स लाइट, वहाँ पे डे आए, वहाँ पे डे बोलेंगे। अगर बच्चा सामने खड़ा है, स्टिकर भी लगाया खड़ा है फोरहेड पे, तो उस पर लाइट फॉल हो रही है और वहाँ पे डे बोलेंगे। वाइल द अदर साइड इज़ इन डार्कनेस, जो पीछे की साइड है उसको डार्कनेस। व्हेन आई वाज टीचिंग दिस टू माय किड्स देन दे सेड दैट मॉम द लाइट इज़ फॉलिंग ऑन द फेस एंड फेस इज़ has no hairs, and on back side there are hairs, that's why there is night, and on front face it is day. It was a joke, big joke, they are very funny. तो ऐसा नहीं होता, ऐसे तो बोलने को तो फ्रंट फेस पे भी तो मॉस्टेज होती है, ब्लैक हेयर्स होते हैं, ठीक है, बियर्ड होती है, तो इट इज़ नॉट सो। मेन है कि सामने जो लाइट फॉल हुई है वहाँ पे डे हो जाएगा, और जहाँ पे लाइट फॉल नहीं हो रही वहाँ पे नाइट हो जाएगा, okay, understand. So the half chapter is almost done, and half chapter we will cover it tomorrow. Thank you for today. Bye bye. Radhe Radhe.